Okay, sorry, stop here. Okay, then we'll move to the databases in Python. इसमें we'll understand how to connect to the database. Okay, what all databases we have, which people uses in the market, what are the benefits of different databases, and how you can connect those databases in Python. Then we'll do our second project. It's based on the first project only. So in the first project, we didn't use uh, file handling, exception handling, database handling in Python. So those concepts we'll implement in our first project. Okay, this would be our the project number 2. Then we will see type hinting, advanced built-in functions in Python. Then move to the advanced Python topics. The most important topic will come when we will read asynchronous Python development. We call it multi-threading also. Uh, in the programming language terms. मल्टी-थ्रेडिंग भी आना ये कॉन्सेप्ट कॉमन है सारी लैंग्वेजेस के अंदर. मल्टी-थ्रेडिंग का मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल if I'll give you a list of 10 numbers, okay, if I'll ask you to sum all those 10 numbers, तो हम जनरली क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक एक एलिमेंट लेंगे और वी विल ऐड देम. Multi-threading says, okay, if you have task like this where you can divide this task into multiple threads which can parallelly run and do your process and then merge the output. तो इसमें हम देखेंगे कि we will create 2 threads. We will give 5 numbers, starting 5 numbers to one thread and second 5 numbers to another thread. They will do the sum in different threads and then uh, do the final summation. The output of the both threads will do the final summation sent to the consumer. Then we'll see Python on the console. Python comes with an interactive console which we call it REPL. ओके, उसका यूज कैसे होता है पाइथन में, कैसे आप छोटे छोटे कोड को आप वहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो. वी विल सी दैट आल्सो. देन विल मूव टू द वेब डेवलपमेंट पार्ट, which where we'll use the Flask API. So I'll tell you what are the micro. So there is a concept in the market, microservice. I'll tell you what are those micro services are and how you can create your web API or REST API using Flask. We'll understand all those things there. Then we'll move to interacting with the API. How can you access those API in the Python program? Because sometimes what you need in MNCs or in the company which you will be placed in future. So there would be different teams which working on the different projects, but sometimes you need to do the communication between those two teams. So where the other team exposes the REST APIs, which developed in the Flask, and you need to access those APIs. So in this section, interacting with the API in Python, we will understand how you can access those APIs. What are the ways in Python? Then we will move to the decorator. Again, it's an advanced topic. I'll tell you when it will come. Then we will see what are the advanced object-oriented programming. Unit testing is again one of the most important topic which you will use in future in whatever language you will get the job. Okay, so what are the unit testing? How can you test your program or the logic which you have written? What are the ways to do in Python? Then I'll show you what all Python libraries are available, and the last the final project. Okay. ठीक है भैया. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, आना इसको म्यूट पे कर दो, ये मेरी आवाज इको हो रही है बहुत. ठीक है भैया, करते. तो सबसे पहला टॉपिक आता है why Python. So as I told you, Python is very popular these days because of the reason is it's easy to understand. It's booming in job market nowadays. जैसे क्लाउड आया है, पहले क्या हुआ करता था कि हर कंपनी के पास अपने सर्वर हुआ करते थे. तो वो लोग क्या करते थे, एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती है कि सारा कोड एक जगह लिखते थे, एक जार बनाते थे उसकी और उस सर्वर पर डिप्लॉय करते थे. उस टाइम पे जावा बहुत बूम पे था.
लेकिन जब से क्लाउड आया है, क्लाउड में क्या है कि आपको कोई सर्वर की समटाइम्स दीज डेज पीपल डजंट यूज एनी सर्वर्स, तो वो क्या करते हैं अपना कोड लिखते हैं, क्लाउड को देते हैं, दे विल एग्जीक्यूट देयर कोड और वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है. सो दैट इज व्हाई पाइथन इज बिकमिंग more popular, and there are many jobs available in the Python. And once you read the Python, there are many fields will be open for you. Like पाइथन के थ्रू आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, पाइथन के थ्रू आप GUI एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जो कि आजकल बनाते नहीं है. पहले क्या होता था ना कि GUI एप्लीकेशन हुआ करती थी, आप EXE डाउनलोड करते थे, आप उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते थे और वो खाली आपके कंप्यूटर पे चलती थी. उससे प्रॉब्लम क्या होता था, वो वन टाइम पेमेंट करना होता था क्लाइंट को, और उसके बाद फिर उसको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती थी उसमें. उसमें अब कंपनी ने क्या कहा कि कंपनी बोलती है ओके वी विल लॉन्च दिस एप्लीकेशन एज अ सब्सक्रिप्शन बेस. हम इसको क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स का आप लेते हो कि 1 मंथ की आपको जरूरत है तो आप 1 मंथ का यूज करो, आपको 2 मंथ्स की जरूरत है आप 2 मंथ्स यूज करो, जैसे आपका रिक्वायरमेंट आप वैसे पैसे दो. उसमें दोनों का फायदा होता है, क्लाइंट को भी सारा पैसा एक साथ नहीं देना होता है, जितनी उसको नीड होती है वो उतना पैसा देता है. और दे कैन डिवाइड ऑन द फीचर बेसिस ऑल्सो, कि अगर मेरे को ये फीचर चाहिए देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, इफ यू डोंट वांट दिस फीचर डोंट बाय इट. ठीक है. देन जैसे मैंने बोला कि पाइथन को पढ़ते ही फील्ड बहुत ओपन हो जाते हैं. वेब एप्लीकेशन हो गई, GUI एप्लीकेशन हो गई, डेटा साइंस में पाइथन यूज होता है, पाइथन का सपोर्ट बहुत अच्छा है. ऑटोमेशन जो करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग सुना होगा आपने कि जो आपका प्रोग्राम होता है ना, जो आप एप्लीकेशन बनाते हो कंपनीज के अंदर, तो उसको टेस्ट करने के लिए एक टीम होती है. अब क्या, अगर आप बड़ी अच्छी कंपनीज देखोगे, गूगल जी, एडोब, SAP, they don't need a person who only knows the automation testing. So they want developer should have an idea about the automation also. They can write the automation code also to test their application. ठीक है, तो उसमें पाइथन बहुत heavily यूज होती है. So there are many other IoT ले लो, आप robotics ले लो, you can use anywhere. We will see in the final project. Once we'll complete this course, we will see where what project we can pick. IoT. So we have so many options after reading Python. So that is why uh, we picked Python for this course, not Java. Okay. And one more ठीक है. thing, Python जो है वो ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इट्स Python code is publicly available. So if you want to make changes in the Python, or if you want to contribute in the Python language, आपको लगता है कि नहीं यार ये कोड कुछ ऐसे इफेक्टिव हो सकता है, so Python has their community which will review your change. You register your change, you tell them okay this is the code I want to add into the Python. They will review your code. If they satisfy with your change, then they add your code into the Python language, so that in the next version of Python your change will be available to use. So इसमें क्या होता है कि लोग अपने अपने छोटे छोटे मॉड्यूल बना बना के पाइथन में की लाइब्रेरी में ऐड करते रहते हैं. अब उसका फायदा क्या होता है, जैसे आप मशीन लर्निंग के बारे में अगर सुना होगा तो NumPy, Pandas, sklearn, okay, matplotlib, these are modules which is written in the Python, which somebody else has written, not the Python core community. So उसमें क्या होता है कि they have written some logic. Okay, you just need to import those modules into your program and start using their modules. तो उसमें क्या होता है कि आपको वो सारा कोड लिखना नहीं होता, somebody has already written for you. So Python की community, because of this open source thing and people can contribute, तो इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है पाइथन की अब कि whatever code you want to written, somebody else has already written and converted into the library. You just need to import it. You need to Google search that I need a library which can do this kind of work. Okay, so you will find some library definitely. So उस library को आप अपने code में लो और use करो, so that you can focus only on your the business implementation, not the other things like database connectivity. So Python has created their modules. Some modules Python only has created. So I'll show you कि कैसे आप
मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हो, और लाइब्रेरी, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी आप कुछ भी बोल सकते हो इनको, लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर इंपोर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो इनको। तो आपका फोकस होगा कि डेटाबेस से मेरे को डेटा चाहिए, रादर देन आप टाइम स्पेंड करो डेटाबेस से कनेक्टिविटी में, which is not much important for your application. Your what is the important? The logic, the business logic which you are writing. So Python says focus there. We will take care of all these activities where you want to connect a database or SQS or some queue like this. Okay. So this is the reason. ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि why Python, why not the other language. अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा का कुछ आइडिया है क्या आपको आना? नहीं भैया। तो जावा में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो कोड जावा में 10 लाइन में होता है, पाइथन उसको 2 या 3 लाइन में लिख देते हैं आप। अब जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी ले लो, तो जावा के अंदर अगर देखोगे तो 5-6 लाइन लिखनी होती है आपको, पाइथन के अंदर वो 2 लाइन में हो जाता है। सो दिस इज द एडवांटेज विच पाइथन के। जावा क्या है कि जब मोनोलिथिक एप्लीकेशन हुआ करती थी, जब अपने कंपनीज अपने सर्वर में डिप्लॉय करती थी, फ्रेमवर्क इतने अवेलेबल नहीं थे, तब पाइथन वो सॉरी जावा यूज किया करते थे लोग, क्योंकि एक तो वो वास्ट बहुत है और उसका फ्रेमवर्क सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, उसमें फ्रेमवर्क स्प्रिंग आ गया, स्ट्रट्स हुआ करता था। ठीक है, अब जैसे स्प्रिंग क्लाउड आ गया है कि जो भी सर्विसेज क्लाउड पे अवेलेबल है यू कैन क्रिएट यूजिंग स्प्रिंग। बट लोग यूजुअली करते नहीं है, करते हैं कि अगर हम क्लाउड यूज ही कर रहे हैं तब यूज ऑल दो सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, रादर देन क्रिएटिंग आवरसेल्फ दो सर्विसेज, क्योंकि उसकी फिर मेंटेनेंस भी करो, सब करो। तो इसीलिए पाइथन को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। पाइथन को एज अ स्क्रिप्ट भी आप यूज़ कर सकते हो कि कहीं पे आपको लगता है कि यार मेरी एक कोड लिखना चाहता हूँ मैं जो रोज डेटाबेस का बैकअप लेगा मेरा। ठीक है, तो इट्स इजी टू रिटर्न इन पाइथन, यू विल सी। सो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे स्टार्टिंग में पाइथन के। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग, हमारा फोकस होगा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। once your implementation will be done, we will start getting deep into these topics. ठीक है, इसमें हम लोग प्रोजेक्ट, so first project would be your movie collection, then we will see library manager, how you can create using these concept, object oriented, error handling, dealing with files, databases, all. Then there will be third project where would be the codes and the bookstore scraper. We will see how we can read data from a website, okay, and convert into a readable format. We will see those. Then we will start using the advanced topic of Python, जो mostly focus जो interviewer का होता है वो इस के पास होता है। एडवांस टॉपिक्स जो आप देख रहे हो कि एसिंक्रोनस मल्टी थ्रेडिंग कैसे काम करती है, ओके, आप पाइथन के प्रोजेक्ट्स को कैसे मेंटेन करते हो, फ्लास्क से आप एपीआई कैसे बनाते हो, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वी विल कवर दीज थिंग्स। तो इस कोर्स के लिए आना, हम लोग स्टार्टिंग में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करेंगे। सो देयर इज अ वेबसाइट रैपलिट, ओके। तो रैपल, जैसे मैंने बोला कि पाइथन भी अपना एक इंटरेक्टिव कंसोल लेके आता है। तो जब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, आई विल शो यू कैसे आप वो कंसोल, पाइथन कंसोल आप यूज कर सकते हो। जो पाइथन उसको बोलता है रैपल। तो रैपल का मतलब होता है, अगर आप इसको read, so whatever code you have written, it reads your code. It will then evaluate your code, and then it will print whatever your code has written. It will print the result of that output, and then this would be the loop. Then again it will go to the first step and will do these things. So that is why we call it REPL. So there is a website, you can you create one account here also, REPL. So they have the online interpreter. Okay, I'll tell you what is the difference between compiler and interpreter. We will discuss these things also, but let's start with some kind of a coding first. That will give you
the touch of this Python language. आप इस पे जाओ, आना और एक अकाउंट बनाओ, मैं आता हूँ अभी 1 मिनट में। REPL8, ओके? ठीक है, ठीक है। अकाउंट जब बन जाए मेरे को बताना। हेलो। हाँ जी, आना बन गया। हेलो। हाँ भैया, बन गया। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप मेरी स्क्रीन पे आओ। तो ये पाइथन का ऑनलाइन आईडी है, आईडी बोलते हैं, जहाँ पे आप कोड लिख सकते हो अपना, ओके? जैसे हम लोग बाद में पाइचाम यूज़ करेंगे, जो आप आपके सिस्टम में इंस्टॉल करोगे और उसी पे आप कोड करोगे, ठीक है? तो रेपल, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्रिएट रेपल। सो जब भी आप कोई नया टॉपिक या कोई नया हैंड्स ऑन ट्राई करोगे तो ऑलवेज क्रिएट अ न्यू रेपल, ओके? तो मैं जैसे एक रेपल बनाता हूँ, तो टेम्पलेट, सो पहले जगह आता है टेम्पलेट का नेम। तो वी वांट पाइथन, so there are two options, Python with turtle and Python. So always select this Python, simple Python, okay? Then give this REPL name, day one, create REPL. So once you will create your REPL, okay, so it will give you, it will show you 3 things. So in the left hand side it will show you what all files you have. In the middle part you can write your code, okay, like this. And when you hit this run button, it will show you the output on the rightmost section of the screen. Welcome. So this is REPL. It what Python does is it reads whatever you have written, it evaluates, okay, what is the meaning of this, it will evaluate this thing, and then it prints on to the screen, and then it will again loop, and it will ask you to it will go to the next line and will do the same thing, ओके? अच्छा, एक और डिफरेंस होता है, जब यहाँ पे आए हैं तो एक चीज और मैं बता दूं, रेपल के लिए इतना काफी है, ठीक है? अगर आपको नई रेपल बनानी होगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेफ्ट मिडिल पार्ट में, देन यू कैन क्रिएट न्यू रेपल। सो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में वेरिएबल करेंगे, यू डू प्रैक्टिस वेरिएबल्स इन वन रेपल, देन when you do the practice for the second topic, create another REPL. So make a habit like this, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग के लिए कोडिंग एनवायरनमेंट। वी विल डू ऑल द कोडिंग इन रेपल ओनली, ओके? तो जब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, that time we will install Python, we will install IDE, and we'll start doing coding into the system itself. We will not use this. तो अच्छा, इसमें 2 चीजें होती हैं, आपने सुना होगा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कुछ आइडिया है इसका? भैया सुना है पर पता नहीं क्या होता है। कंपाइलर एंड इंटर, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जैसे पहले क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी कि अगर मेरे को अपनी शादी का इनविटेशन अपने दोस्तों में भेजना है, तो हम लोग यूजुअली अभी क्या करते हैं, अभी हम व्हाट्सअप कर देते हैं, ठीक है? लेट्स अज्यूम पहले व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था, ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वुड बी देयर। तो क्या होता था कि उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये था कि मैं एक
इनविटेशन बनाऊं और वो मैं सबको भेज दूं, सब वो इनविटेशन को कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर जो लिखा होगा वो रीड करेगा और वो दिखा देगा कि इनविटेशन में है क्या। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि किसी के पास आईफोन है, किसी के पास मैक है, किसी के पास विंडोज है, किसी के पास कोई डिवाइसेस है, तो मैं ऐसा कोड नहीं लिख सकता था कि जो सारे डिवाइसेस पे चल जाए, वो इनविटेशन रन हो जाए। इसीलिए ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। एक तो अब क्या होगा कि मैं सबको बोलूंगा कि यार दिस whatever I am sending you, this is written in Java language or the Python language। तो आप इसका जो सपोर्टेड मतलब पाइथन हो गया या जावा हो गया, आप इंस्टॉल कर लो। वंस दे हैव इंस्टॉल, लाइक सबने अगर पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, देन यू कैन सेंड योर इनविटेशन, दे विल बी एबल टू सी योर इनविटेशन। ठीक है, सेम जावा के साथ हुआ करता था कि जावा में आपको जेवीएम इंस्टॉल करना, तो जावा के अंदर दो चीज़ें होती थी। जावा पे नहीं जाते हैं अभी, पाइथन पे रहते हैं। तो जावा, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, तो इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि ये दोनों डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है वो खाली बाइनरी लैंग्वेजेस को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, लेकिन जो हम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो कंपाइलर की ज़रूरत होगी या फिर इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी। अब ये दोनों का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सबसे पहले आपके कोड को कंपाइल करेगा। दैट मींस इट विल चेक, ओके डू यू हैव एनी सिंटैक्स एरर, और वो सारा पूरा का पूरा जो भी आपने लिखा होगा प्रोग्राम के अंदर, पूरी फाइल के अंदर, इट विल इवेल्युएट योर whole file, okay, and then will tell you after completing the compiling process कि या कोई syntax error नहीं है, अगर है तो कौन कौन से syntax error है, किस किस लाइन पे है, it will give you in one shot। okay, तो ये आपके प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करता है कंपाइलर, ओके, एंड देन विल टेल यू ओके ये अब सही है, मैं इसको एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता हूँ। तो कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को, जिसको हम हाई लेवल कोड भी बोलते हैं, हाई लेवल कोड को ये कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड में। ओके, और कंपाइलर के साथ हमेशा एक एक रन टाइम एनवायरनमेंट भी होता है। ठीक है, फिर ये इंटरमीडिएट कोड को लेके एक रन टाइम, जिसको हम जावा के अंदर जेवीएम बोल देते हैं। तो जावा यूजेस कंपाइलर। तो जब आप जावा में देखोगे तो दो चीजें होती हैं, जेवीएम एंड द कंपाइलर। ओके, जेवीएम इज द रन टाइम एनवायरनमेंट जो इंटरमीडिएट कोड पे करता है, तो वो इसको हम इंटरमीडिएट कोड देते हैं, जेवीएम को पकड़ाते हैं, जेवीएम उसको रन कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर रीड्स योर कोड लाइन बाय लाइन, इट विल नॉट रीड होल कोड एट वन टाइम, इट विल read the first line, it will check okay there is no syntax error, okay there is no error in this code. So as I told you, REPL, remind this concept, REPL, it will read your line, then evaluate your line, and then prints that line, okay, and then it will go to the another line and do the same thing। ओके, तो पाइथन जो यूज होता है वो इंटरप्रेटर यूज करता है कि अगर आपके प्रोग्राम में 10 लाइनें लिखी हुई है और हर लाइन पे एरर है, तो ये क्या करेगा, वन बाय वन आपको बताएगा कि सबसे पहले जब आप इसको रन करोगे फाइल को, हम डायरेक्ट रन करते हैं, इसमें कोई कंपाइलेशन का प्रोसेस नहीं होता है। जावा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कंपाइल करना होता है और फिर जावा कंपाइलर यूज करता है। इसमें पहला स्टेप होता है कंपाइल द कोड, कंपाइल कोड एंड रन इट। तो दो स्टेप होते हैं किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसमें क्या होता है, ओनली रन सेक्शन होता है कि यू कैन डायरेक्टली रन योर प्रोग्राम, यू डोंट नीड टू कंपाइल इट, इट विल डू लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। इट विल डू ऑल दिस प्रोसेस इन वन शॉट, इट विल डू लाइन बाय लाइन। This is the most common difference between the compiler and the interpreter। Okay, so Python uses interpreter। तो अगर जैसे मैं यहाँ ये कुछ एरर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो मेरे को दोनों एरर नहीं बताएगा। It will tell me only the first error। It says, okay, there is an error in main.py file, which is this file, at line number 2। Okay, print syntax was never used। ठीक है, या अगर मैं ये कुछ ऐड कर दूँ, then it says, okay, you have a
problem in the line number 1, there is a syntax error. Syntax means Python has defined some kind of a rule to return the Python language. Okay, so जैसे print का एक syntax होता है कि print होता है कि you write print statement, then the curly braces, opening and closing braces, and जो भी आपको प्रिंट करना है इसके अंदर दो. तो ये बोले इसने मेरे को एक ही एरर दिया. जब मैं ये फिक्स कर दूंगा देन इट विल गिव यू द सेकंड एरर. तो इट विल गिव मी द लाइन बाय लाइन काइंड ऑफ थिंग. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर. ओके, सो कोडिंग एनवायरनमेंट हम लोगों ने कर लिया है. ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट कोड पे आते हैं. सबसे पहला कोड लिखते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को लिखने के तरीके को हम कैसे 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 लिख सकते हैं, एंड देन वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में डिफरेंस क्या होता है. तो सबसे पहले लेट्स से वेरिएबल होता है कि प्रोग्राम के अंदर जो भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हो, आपको ना आप कुछ वैल्यूज कहीं पर स्टोर करके रखनी होती है. ओके, ताकि उसको आप प्रोग्राम में नीचे यूज कर सको. तो जिसमें आप स्टोर करते हो वी कॉल इट वेरिएबल. ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं. इसको आना कहीं पे लिखते रहना. जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ना, ये आपको पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज मिलेगा इसका. वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स. ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? हर लैंग्वेज के अपने आइडेंटिफायर्स होते हैं. आइडेंटिफायर्स बोलो या कीवर्ड्स बोलो, ये क्या होता है, हर लैंग्वेज ने ना कुछ वर्ड अपने फिक्स किए हैं कि इनका अगर आप ये वर्ड यूज करते हो तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है. लाइक जैसे प्रिंट हम लोगों ने यूज किया था. सो प्रिंट को आप अपने यूज के लिए नहीं यूज कर सकते. उसका फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन प्रोग्राम के अंदर कि जब भी आप प्रिंट करोगे पाइथन विल अज्यूम दैट यू आर प्रिंटिंग समथिंग ऑन दिस लाइन. तो अगर उसमें अगर कुछ भी उसको मिस्टेक मिलता है, उसके सिंटैक्स में कोई भी दिखता है, तो इट विल थ्रो द एरर. ओके, तो वेरिएबल क्या होता है? यू कैन नेम इट लाइक age equal to 30. Okay, and now you can use this variable into your program. So मैंने एक वेरिएबल के अंदर एक 30 वेरिएबल रख लिया, इसको मैं यूज कर सकता हूँ print is 30. So we call this thing a variable. Now you can change anywhere in the program the variable value. पहले उसकी 30 थी, अभी मैं 40 करता हूँ. अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो what would be its value? 40. So 30, 40. In variable names, you can contain letters, numbers, underscore. Okay, variable name में आप कुछ भी आप use कर सकते हो. इसका variable name आप ये भी रख सकते हो, age 1 2 3 और 1 2, sorry, without space. There should no space in the variable name. You can use letters, numbers or underscores. Okay, however they cannot start with a number. तो वेरिएबल जो होता है आपका, वो नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा. इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द अंडरस्कोर और न्यूमेरिक वैल्यू. ओह सॉरी, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू. देयर आर सम रिजर्व्ड नेम्स, as I told you, because Python uses them for other things. जैसे print हो गया, def आप आगे पढ़ोगे, class हो गया, ये सब कुछ वर्ड है ना Python ने ऑलरेडी डिफाइन किया है. ओके, तो वेरिएबल नेम में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि लिखने के तरीके में इसको हमेशा लिखते हैं हम स्नेक केस में. आपको पता है स्नेक केस क्या होता है? स्नेक केस, कैमल केस. नहीं. तो कैमल केस में अगर आपका वेरिएबल नेम बहुत बड़ा है, जैसे मेरा वेरिएबल नेम बता रहा हूँ मैं फर्स्ट नेम. ओके, तो कैमल केस होता है योर फर्स्ट लेटर वुड बी ऑल स्मॉल एंड देन सेकंड लेटर का फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है. तो ये होता है कैमल केस. ये हम लोग फॉलो करते हैं जावा के अंदर, और पाइथन में करते हैं स्नेक केस. स्नेक केस क्या होता है कि फर्स्ट वेरिएबल, सॉरी फर्स्ट नेम and then underscore and then the second name. So whenever you want to write a long variable name, always use snake case. Okay, don't use name case. कैमल केस यूज भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पाइथन का अगर आप देखोगे जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि ऑलवेज यूज स्नेक केस इन द पाइथन लैंग्वेज. ओके,
और अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है आना कॉन्स्टेंट्स का। तो कांस्टेंट वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू आप कोड में चाहते हो कि कोई चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं रेडियन टू डिग्री निकालता हूँ, एक ये मैथमेटिकल टर्म है रेडियंस टू डिग्री, या फिर कोई तो इसका फॉर्मूला होता है 180 बाई पाई, एंड वी नो पाई इज अ यूनिवर्सल वैल्यू। पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है मैथमेटिकल टर्म्स में, which would be 3.14159 करके कुछ समथिंग लाइक दिस। ओके, तो हम चाहते हैं कि यार जब आप कोड लिखते हो तो क्या होता है, एक टीम में ना मल्टीपल्स लोग एक ही फाइल को मॉडिफाई करते हैं। तो whenever you want to tell the other person don't change this value into your program, always write in the capital letter. Once you write this capital letter it becomes constant. So variable को ही constant बोलते हैं, but वो constant होते हैं जो caps letter में लिखे होते हैं, and those variable values or those constant values should not change into your program. You can change, but उसको अगर आपने कैप्स में लिखा है तो आइडियली उसको चेंज नहीं करना चाहिए। उसको ये खाली एक बताने का तरीका होता है कि ये वेरिएबल यू कैन नॉट चेंज इनटू योर प्रोग्राम, बट वो कर सकते हो, बट करना नहीं चाहिए। ओके, गुड प्रैक्टिस इज वॉट एवर रिटर्न वेरिएबल नेम रिटर्न इन द कैपिटल लेटर दैट इज कांस्टेंट एंड यू शुड नॉट चेंज इट इनटू योर प्रोग्राम। So these all things related to the variables in Python. So variable name you can change, you can use the snake letter, and what are the constants which you cannot change. Let's move to the another topic, which would be, let me open PPT. Okay, numbers. So these now I'll tell you what are the data types in Python. So डेटा टाइप्स का कुछ आइडिया है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं? नहीं भी। तो डेटा टाइप्स भी एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो डेटा टाइप से नाम से ही डिफाइन हो रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ द डेटा। डेटा मीन जो आपने वेरिएबल यूज करोगे उसमें जो आप वैल्यू असाइन करोगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस डेटा। इज इट अ नंबर, इज इट अ स्ट्रिंग, इज इट फ्लोट, फ्लोट मीन्स डेसिमल नंबर, और डबल मतलब कि बिगर डेसिमल नंबर, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स, सो व्हेन यू वांट टू check what is the type of this data, we call it data type. So python के अंदर कुछ डेटा टाइप डिफाइंड है कि जो आप वेरिएबल लेते हो या तो नंबर हो सकता है which we call it int, या स्ट्रिंग हो सकता है which we call it str, या वो फ्लोट हो सकता है जिसको फ्लोट ही बोलते हैं, या फिर वो डबल हो सकता है। ओके, ये सब डेटा टाइप्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ कि नंबर्स डेटा टाइप में क्या क्या होता है। तो so basically there are two main types of number, whole number and the floating numbers. whole number क्या होता है, जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं होता है, और फ्लोटिंग होता है जो जिसमें डेसिमल्स होते हैं। तो होल नंबर यू नो 1 2 3 100 1000 1000 10000, those number which don't have decimal number वो होते हैं होल नंबर। डेसिमल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, इन ये वो रहते हैं जिसके अंदर डॉट्स होते हैं, जो डेसिमल्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एज इक्वल टू 35 और एक रखता हूँ पाई 3.14, ठीक है, तो दोनों के डेटा टाइप अलग है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हम लोगों को ना वेरिएबल जहाँ डिफाइन करते हैं वो बताना पड़ता है कि किस टाइप का वेरिएबल होता है। पाइथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, बिकॉज ये जब ये रन होती है दैट टाइम पाइथन डिसाइड व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एज, सो यू कैन असाइन व्हाटएवर यू वांट इन एज। सो यहाँ पे अगर मैं नीचे एज की वैल्यू चेंज भी करता हूँ और एक स्ट्रिंग रखता हूँ तो इट्स टोटली फाइन विद द पाइथन, बट बाकी लैंग्वेज के अंदर ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो डायनामिक नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो
यहाँ पर ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपका वेरिएबल क्या रखने वाला है, लाइक इंट होने वाला है या क्या होने, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. यू डोंट नीड टू डिफाइन एनी डेटा टाइप, यू जस्ट नीड टू यूज द वेरिएबल एंड असाइन व्हाटएवर वैल्यू यू वांट टू असाइन. ठीक है. अब इसमें आते हैं, जैसे मैथ ऑपरेशन अगर आपको कहीं परफॉर्म करना होता है ऑपरेशन, वो पाइथन के अंदर आप डायरेक्ट मैथ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो. 1+3 into 4 divided by 2 minus by 2. So you know how this works. So we call this line, means every line is a statement in the Python. स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में दो चीजों का फर्क होता है. स्टेटमेंट होता है the whole line in the programming language, we call it statement. Expression होता है when where you are evaluating something, you are calculating something, उसको बोलते हैं expression. तो ये मैथ एक्सप्रेशन वैसे ही काम करेगा जैसे मैथ में करता है कि बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस देन माइनस, और जब ये पूरा कैलकुलेट करके पाइथन आपको रिजल्ट दे देगा. सो मैथ ऑपरेशन इसमें डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो आप कुछ भी. फिर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ. प्रिंट कराने के लिए मैंने बताया सिंटेक्स क्या होता है. प्रिंट एंड देन यूजेस द ब्रेसेस, अराउंड ब्रेसेस, एंड पुट द वेरिएबल नेम. इट विल प्रिंट दैट वेरिएबल वैल्यू. सो इट्स 12. ओके. अच्छा, अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो पाइथन के अंदर, ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ देखोगे कि इसने ना रिजल्ट हमेशा फ्लोट में देता है, और ठीक है, तो अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रिंट के अंदर दो नंबर्स लिए मैंने, 12 divided by 3, and when we try to print it, what it will give you the float number. लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे रिजल्ट के अंदर मेरा रिजल्ट जो है वो फ्लोट में ना आए. वो फ्लोट मैंने बताया डेसिमल जिसमें होता है उसको फ्लोट बोलते हैं. डेटा टाइप होता है एक फ्लोट. ठीक है. मैं चाहता हूँ कि वो इंटीजर में आए. तो इंटीजर के लिए होता है एक कि अगर आप डबल डिवाइड कर दोगे और यहाँ प्रिंट करोगे तो ये आपको फ्लोट में नंबर नहीं देगा. तो ये आप याद रखना कि दो नंबर को अगर कहीं भी डिवाइड करते हो, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू द इंटीजर. दैट इज व्हाई व्हेन वी प्रिंट दिस मैथ ऑपरेशन इट गिव्स अस द फ्लोटिंग नंबर बिकॉज़ दे हैव डिवाइड इन द एक्सप्रेशन. ओके. तो भैया ये जो फ्लोट में डिजिट देता है ये सिर्फ डिवीजन पे ही देता है? करेक्ट, ये खाली डिवीजन पे देता है. अगर मैं यहाँ से डिवाइड हटा देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो इसने फ्लोट नहीं दिया. सो व्हेनेवर यू यूजेस डिवाइड इट विल ऑलवेज गिव यू रिजल्ट इन द फ्लोट. लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्लोट में ना दे, देन यूज द डबल डिवाइड सिंबल. ओके. इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन बोल देते हैं इस सिंबल को. ठीक है, इस ऑपरेटर को बोलते हैं इंटीजर डिवीजन. तो अब भी देखो ये 4 में आया है. अगर मैं सिंगल डिवाइड करता हूँ इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन. तो ये फ्लोट में रिजल्ट देता है. ठीक है. तो फ्लोट और इंट डिवीजन का बस एक डिफरेंस होता है. अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा, 5.333. लेकिन अगर मैं इंटीजर डिवीजन करूंगा तो ये डेसिमल के बाद का जो भी आएगा इट विल ड्रॉप ऑल दिस थिंग्स एंड गिव यू द फर्स्ट रिजल्ट 5. ये डिफरेंस होता है. So this is all in the number data type of the Python or the int data type of the Python. किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना हो ना, तो पाइथन के अंदर एक टाइप मेथड होता है. इसके अंदर आप वेरिएबल पास करो और ये आपको टाइप बता देगा. जैसे अगर मेरे को मैथ ऑपरेशन का टाइप पता करना है तो मैं क्या करूंगा, टाइप मैथ ऑपरेशन, और इसको प्रिंट कराऊंगा. तो आप देखना ये प्रिंट क्या करेगा, मुझे बताएगा कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है. इसने बोला कि इसका टाइप क्या है, इंट. ओके. So like this you can check your means if you required it if you want to check what is the type of the variable, you can do like this, use this thing. This is also another identifier in the Python type. There is one identifier print. Okay, this is all in the numbers. कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं भैया. अच्छा, इसमें एक होता है रिमाइंडर.
कि किसी नंबर का रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? रिमाइंडर के बारे में पता है, मैथ में तो पढ़ा होगा। हाँ जी भैया। हाँ, तो पाइथन में रिमाइंडर निकालने के लिए वी यूजेस दिस मॉडुलस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप ये यूज कर लोगे इट विल गिव यू द रिमाइंडर ऑफ द रिजल्ट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि डिवीजन विद रिमाइंडर, okay, 12 divided by 5, this is the integer division I'm doing। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? डिवीजन विद रिमाइंडर will give you the divide result कि 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12। तो ये इंटीजर डिवीजन है इसलिए 2 बोल रहा है। अगर मैं डिवाइड यूज करता हूँ तो विल गिव मी 2.4। ठीक है, लेकिन ये तो मेरा रिमाइंडर नहीं है, मुझे तो रिमाइंडर चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा इस रिजल्ट से 2 से। ठीक है, तो मेरा कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, कि 5 2 10 और रिमाइंडर हुआ 2। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? रिमाइंडर इक्वल टू 12 मॉडुलस 5, और अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो इट विल प्रिंट यू द रिमाइंडर ऑफ दिस। अच्छा, रिमाइंडर जो मैं ऑपरेटर आपको बता रहा हूँ, इतना फोकस कर रहा हूँ, इसका यूज इसलिए है कि हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे टू फाइंड द नंबर इज इवन और ऑड। ओके, सो देयर वी यूजेस दिस मॉडुलस ऑपरेटर। तो अगर कोई नंबर आपको इवन या ऑड पता करना है तो उसके लिए होता है कि उसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर 1 बचता है तो दैट इज ऑड नंबर, अगर 0 बचता है तो वो इवन नंबर होता है। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया x, उसमें वैल्यू ऐड की 37। अब मेरे को इसका रिमाइंडर चेक करना है तो मैं करूँगा 2 से डिवाइड इसको, x मॉडुलस 2 टू नो व्हाट इज दिस नंबर इवन और ऑड। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा रिमाइंडर। 37 क्या प्रिंट करेगा? मेरा 1। ये हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब आप वर्ड में या कोई टेबल बनाते हो ना, तो टेबल का डिजाइन होता है कि एक रो व्हाइट कलर की, एक रो ग्रे कलर की, एक व्हाइट की फिर ग्रे की। वहां पे क्या करता है ये वर्ड या कोई भी प्रोग्राम, वो इसी कोड को यूज करता है। वो क्या करता है, रो नंबर को मॉडुलस करता है 2 से, और वो बोलता है कि अगर ये इवन नंबर है तो ग्रे करो, ओड नंबर है तो व्हाइट करो। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे एक इसकी एप्लीकेशन हो गई कि वहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको। So this is all in the number section। So I told you नंबर के अंदर कैसे आप चेक कर सकते हो कोई भी डेटा टाइप। नंबर को डिवाइड करने पे फ्लोटिंग पॉइंट आता है, अगर उसको आपको फ्लोटिंग नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए। रिमाइंडर कैसे काम करता है, ओड और इवन कैसे हम लोग काम कर सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर। सो वी हैव कवर्ड द नंबर सेक्शन, नंबर डेटा टाइप और द इंट डेटा टाइप। इसमें कोई क्वेश्चन आना? नहीं। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी जितना भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग भी होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि वंस यू विल कवर दिस सेक्शन, द बेसिक थिंग, देन इंटरेस्टिंग थिंग्स विल कम। कि डेटाबेसेस आएंगे हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, हमारे पास वेब एप्लीकेशन हम बनाएंगे, फिर हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ों को समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। तो इसको जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ना इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती, आपके हाथ को प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो कब होती है? जब आप बार बार आप कोड लिखते हो ना, तो आपको क्या होता है, उस लैंग्वेज के सिंटेक्स की आदत पड़ जाती है। इनिशियली प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उसको बार बार आप लिखना, बार बार रेपल पे रन करना, तो आपको वो सिंटेक्स की आदत हो जाएगी कि क्या एरर आती है, कैसे फिक्स होता है, तो कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो नंबर्स के अंदर हमने पढ़ा इंटीजर एंड फ्लोट। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि अगर आपको किसी लाइन को कमेंट करना हो कि आपने ये लिखा है और आपको यूजर को बताना है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है,
ओके, तो यहाँ पे आप कोड के अंदर आप कमेंट लिख सकते हो। कमेंट लिखने का तरीका होता है हैश। तो अगर आप किसी भी लाइन के अंदर ये सिंबल ऐड करोगे हैश एंड कुछ भी लिखोगे, बिलो कोड टू फाइंड रिमाइंडर, ओके, सो जब भी कोई थर्ड पर्सन आके इसको या सेकंड पर्सन आके इसको रीड करेगा, सो आफ्टर रीडिंग दिस लाइन वो समझ जाएगा अच्छा ये नीचे वाली लाइन में आप कर क्या रहे हो। सो गुड प्रोग्रामिंग इज नॉट व्हाट योर सिस्टम अंडरस्टैंड, गुड प्रोग्रामिंग इज द other person or your colleague or the second person understand your program without telling you. So that is why we heavily use comments in our program. So comment का होता है तरीका, एक हैश लिखो और देन ये लिखो, जब पाइथन इस लाइन पे आएगा ना तो उसको देखेगा ये हैश है तो मेरे को कुछ नहीं करना, इट विल डोंट डू एनीथिंग ऑन दिस लाइन, इट विल स्किप दिस लाइन एंड मूव टू दिस नेक्स्ट लाइन। तो कमेंट लिखने का एक तरीका होता है ये। समटाइम्स क्या होता है कि आपका कमेंट बहुत बड़ा होता है, कि जैसे मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करना होता है तो मल्टीपल कमेंट्स, मल्टीपल लाइन में वो कमेंट जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि बार बार आप हैश लगाते रहो और अपना कमेंट लिखते रहो, ठीक है। एक देयर इज एन वे in Python, there is another way which I will tell you later in another section. तो अभी अगर आपको मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना है तो यूज दिस वे ओनली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो इंटीजर फ्लोट कमेंट हो गया, फ्लोटिंग डिवीजन इंटीजर डिवीजन हो गया, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन हो गया। ये एक एग्जांपल मैंने बताया कि आपने टेबल देखी होगी, देखो इसका फर्स्ट रो वाइट में, सेकंड ग्रे में, देन थर्ड वाइट में। तो यू कैन पुट दिस लॉजिक की ओड है तो सो सेट बैकग्राउंड कलर टू वाइट, इवन सो सेट बैकग्राउंड कलर टू ग्रे, लाइक दिस यू कैन यूज पाइथन स्ट्रिंग। अच्छा, मैं ये पाइथन स्ट्रिंग और कवर कर लेते हैं, फिर हम आज का टॉपिक यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ इसको आज, कल फिर हम इसको खींचेंगे, ठीक है। तो आज के दिन खाली जो मैंने बताया है ये रिकॉर्डिंग में आपको अवेलेबल हो जाएगी यहीं पर टीचमेंट पे, सो यू कैन रीड इट अगेन, मतलब लिसन इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पाइथन, why are you learning Python, why not the other language, what are the basic things, what we'll do in this section. तो स्ट्रिंग एक अनदर डेटा टाइप होता है, तो स्ट्रिंग को बोलते हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। तो कुछ लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर एक डेटा टाइप होता है, लेकिन पाइथन के अंदर नहीं है। पाइथन के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसको हम str भी बोलते हैं। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो होता है योर वेरिएबल नेम एंड देन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, आप कुछ भी दे सकते हो इसमें। मैंने डबल कोट्स दिया हेलो वर्ल्ड, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। एक और वेरिएबल लिया, इसको सिंगल कोट में लिखा, ठीक है। दोनों को प्रिंट कराओगे कोई दिक्कत नहीं है। माई स्ट्रिंग and print single quote string, both would give me the same result, both would be the variable। और इनका टाइप भी चेक कर सकते हो, अगर मैं इनका टाइप भी चेक करता हूँ दोनों का, both would be string, okay। String can use either single or double quotes, it's up to you which you want to use। मैं बोलूँगा कि जब भी आप प्रोग्राम लिखो ना तो पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई एक ही तरीका सेलेक्ट कर लो आप, या तो डबल कोट्स का या सिंगल कोट्स का, और उसको यूनिफॉर्म रखो अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर। मतलब जहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग बनानी है, यूज द सेम वे, ओके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको ये प्रिंट करना है आए आहाना, आहाना, सही है ना, हाँ, और
मैं बोलता हूँ व्हाट्सअप लिखना है आपको, व्हाट्सअप, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, अगर मैं इसको सिंगल कोट के अंदर लिखता हूँ, अगर मैं इसको सिंगल कोट के अंदर लिखता हूँ तो इस स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी सिंगल कोट है, तो पाइथन क्या होगा, पाइथन फट जाएगा। यहाँ पे बोलेगा यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है आपकी स्ट्रिंग कौन सी है, ये है या ये है। तो इसने बोला सिंटैक्स एरर, एन अनइंटेंडेड स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार ये शायद आपकी स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग वाला लिटरल है। अगर ऐसा होता है और आपको चाहिए ये प्रिंट करना, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप डबल कोट्स यूज करो बाहर पे और अंदर सिंगल कर दो, तो भी ये चल जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट हुआ। या फिर आपको आपका कोड यूनिफॉर्म आप सिंगल ही रखना चाहते हो, उसको सिंगल रखो और यहाँ पे बैक स्लैश लगा दो। ये क्या करेगा, इसको ये समझ जाएगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वंस यू ऐड द बैक स्लैश। सो दिस बैक स्लैश only uses whenever you want to use single quotation and your single quotation is coming, and if you are using double quotation and then you don't need to write it this backslash, then also it would run। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैं बोलता हूँ डबल कोट्स है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यूज सिंगल कोट्स एट द आउटसाइड। तो क्या होगा, पाइथन को पता होगा अच्छा मेरा स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ पर खत्म हो रहा है और इन मिडिल जो भी है उसके लिए एक स्ट्रिंग है। सो रिकमेंडेशन ये होता है बैक स्लैश कभी यूज ना करो, ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग डबल कोट्स और सिंगल कोटेशन मार्क्स। अगर वो तब भी नहीं होती है सॉल्व, कि मान लो अगर मेरे कोड के अंदर दोनों ही है, सिंगल भी है और डबल भी है, देन व्हाट विल डू, देन यूज बैक स्लैश। अब तो कोई हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है। सो इफ योर स्ट्रिंग हैज कोटेशन मार्क, ओके, मेक श्योर टू यूज द अदर मार्क ऑफ द स्ट्रिंग इटसेल्फ, कि अगर डबल है तो सिंगल यूज करो, सिंगल है तो डबल यूज करो, अगर दोनों है तो बैक स्लैश करो, ठीक है। एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का। मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब आपकी अभी ये जितनी भी स्ट्रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब सिंगल लाइन के अंदर है, बट इफ यू हैव सम स्ट्रिंग व्हिच इज गोइंग इनटू मल्टीपल लाइन, जैसे पैराग्राफ हो गया कि हाय आना how are you, welcome to the pod, ठीक है। आप चाहते हो कि आप ये स्ट्रिंग में रखो और ये एज इट इज प्रिंट हो, तो उसके लिए होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो उसमें होता है या तो आप 3 सिंगल कोट यूज करो या 3 डबल कोट्स यूज करो, लाइक यू डू इन क्रिएटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करो, जैसे मल्टी लाइन, इसको मैं असाइन किया और अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इट विल प्रिंट इन दिस एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट, ठीक है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज करने का तरीका है यूज 3 सिंगल कोट्स और 3 डबल कोट्स, ओके, व्हाटएवर यू वांट टू यूज। अब जैसे अभी हमने पिछले सेक्शन में बात की थी कमेंट की, सिंगल लाइन कमेंट, सो मल्टी लाइन कमेंट आप यूजिंग दिस यू कैन राइट द मल्टी लाइन कमेंट, कि अगर आप इस स्ट्रिंग को अगर आप कहीं किसी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करते हो तो पाइथन के लिए ये कमेंट है कि अगर आप कोई आपने नीचे फंक्शन डिफाइन करना किया हुआ है तो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बिलो फंक्शन वर्क्स लाइक बिलो कमेंट। एक मिनट देना, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी आना। तो मल्टी लाइन कमेंट आप ऐसे लिख सकते हो। तो पाइथन जब यहाँ पे आएगा तो उसको देखेगा अच्छा ये एक स्ट्रिंग है जो आपने किसी को असाइन नहीं की हुई है, तो इट विल नॉट डू एनीथिंग। सो आप ऐसे लिख सकते हो मल्टी लाइन कमेंट्स रादर देन
writing hash and every line. Okay, so you can use the multi-line string as a comment also. But अगर आप उसको वेरिएबल को असाइन करते हो तो वो वेरिएबल को असाइन हो गया, then Python do the assignment operation over there. So multi-line string are useful when you have very long ones and you want to be able to write them a bit more easily. Okay, multi-line string keep the lines in the string. तो अगर इसका आप टाइप भी प्रिंट करोगे you will get str. अब इसमें आता है कि अगर मेरे को दो लाइन को कमेंट करना होता है कि जैसे मेरा एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम हर्ष, सेकंड नेम वर्धन, अगर मुझे इसको कॉन्कैटिनेट करना होता है तो ऑपरेटर यूज होता है प्लस का जो एडिशन करता है नंबर्स को, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग के साथ लगा होता है तो इसको ये यूज होता है फॉर कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग. ओके, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, फुल नेम प्लस सेकंड नेम, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, ये कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग देगा एक हर्षवर्धन. ओके, तो ये आपके प्रोग्राम में बहुत यूज होगी जब आप आगे चल के यूज करो इसको, तो बहुत 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 यूज होगी. जैसे आगे हम क्या करेंगे, जैसे किसी को गुड मॉर्निंग करना है, कि आपका प्रोग्राम क्या है कि आप इनपुट लोगे यूजर से और वो रिटर्न क्या करेगा, गुड मॉर्निंग दैट नेम, गुड मॉर्निंग आना, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग XYZ. ओके, तो उसमें क्या करोगे कि आप एक जैसे नेम, अभी तो मैं यूजर से, क्योंकि अभी हमने आए नहीं है उस टॉपिक पे जहाँ से हम यूजर से इनपुट ले, जैसे यूजर ने प्रिंट किया हर्ष, मेरा एक मैसेज है ग्रीटिंग मैसेज जो ग्रीट करेगा, तो वो क्या है, गुड मॉर्निंग, और मैं क्या करूँगा प्लस दिस नेम, और इसको मैं प्रिंट करा दूंगा कंसोल पे. तो जो भी नेम आप यहाँ डालोगे तो वो क्या करेगा, गुड मॉर्निंग दैट नेम. तो दिस कॉन्कैटिनेशन कम्स देयर. So one more thing, so we are using for concatenating this plus operator. Okay, this addition operator you use with integer also, but if you want to append a number and integer, so क्या होगा Python के अंदर, sorry, strobj equal to, अगर मैं इन दोनों नंबर को एडिशन करता हूँ प्रिंट के अंदर, age प्लस str obj, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा. एक बोलेगा कि या तो ये दोनों नंबर होने चाहिए या फिर ये दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए. सो इट्स नॉट अ मिसमैच कि you should have the same type of both the variable, then only I can do the either the concatenation operation or the addition. Okay, but आपको जैसे एक स्ट्रिंग हो गई my age is, और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसे प्रिंट हो कि my age is whatever age यूजर ने प्रिंट करी है, तो उसका एक तरीका होता है. सो टाइप कास्ट करने के लिए, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन ने कुछ मेथड दिए हुए हैं. जैसे अगर किसी चीज को आपको इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट यूज होता है, किसी चीज को आपको इंटीजर या किसी और टाइप से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है तो str होता है. तो अगर मैं इस एज को, एज str को जो 34 है, इसको str मेथड के अंदर टाइप कास्ट कर दूं तो अब मेरा ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा. अब मैंने क्या किया, मैंने 34 जो वेरिएबल था, जो इंट था, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इफ आई अपेंड दीज टू वेरिएबल str obj और एज str obj प्लस एज str, तब ये मेरा रन हो जाएगा. सो देयर आर वेज, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. इसको इन वर्ड को ना आप कहीं पे, मतलब ये काफी हेवीली यूज होता है. टाइप कास्टिंग मींस व्हेन यू डू द कास्टिंग और द कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप. तो अगर आपको इंटीजर से स्ट्रिंग में करना है तो str यूज करो, स्ट्रिंग से इंटीजर में करना है तो int यूज कर लो.
कि अगर मैं यहाँ INT लगा देता हूँ वापस, ठीक है, तो ये वापस से इंट बन जाएगा। अभी अगेन ये एरर देगा कि आपने पहले एक इंटीजर को स्ट्रिंग में बनाया, फिर स्ट्रिंग को फिर आपने इंटीजर में बनाया, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन डू द टाइप कास्टिंग इन पाइथन। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं अभी। आना आज का इतना रखते हैं हम, ठीक है। मैं ये प्रैक्टिस सेट आपको, ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी यहीं पर टीचमेंट के ठीक ऊपर। है। टीचमेंट पे आप जाओगे तो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा, और यहाँ से स्टडी मटेरियल से आपको ये कोडिंग सेक्शन भी मैं आपको दे दूंगा, जो जो आज कोड हुआ है। ठीक है, तो आज का थोड़ा हल्का रखते हैं, ठीक है। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, कल हम लोग कवर करेंगे इसमें, सॉरी किधर गया। तो पाइथन में अभी हमने देखा कि सराउंडेड बाय डबल और सिंगल कोटेशन मार्क्स, कंटेन्स करेक्टर्स, एस्केप करेक्टर, वो जो बैकस्लैश हम लोगों ने यूज किया था, मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्या होती है, कॉनकैटिनेशन क्या होता है, str क्या होता है, और कल हम पढ़ेंगे पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की ऐड नंबर टू अ स्ट्रिंग, जैसे मैंने बताया उसको कैसे आप कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, वो कल कल देखेंगे हम। और कल हम इसमें पाइथन स्ट्रिंग के बाद यूजर इनपुट होगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं हम, बूलियन ऑपरेटर्स होंगे, अभी काफी कुछ है। अभी इतना रोकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है कोई सर। क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं। कुछ कंफ्यूजन, कुछ तेज जा रहे हैं हम, क्या कुछ और डीप में जा सकते हैं, लेट मी नो, जो भी आपको लगता है। नहीं भैया ठीक है सर। ठीक है, इसको